Alright, the order of study as such is not very important when you're looking at the risk management subject. I wanted to start off with something that is more on the interesting side and more on the numerical side, and also a little bit of an overlap with the SFM part. So we're going to be starting off with a chapter 4, that is quantitative analysis. We will be starting with quantitative analysis. The chapter number might change if they are going to go through any change in the syllabus, but right now we are going to start off with the quantitative analysis as a reading. So this is going to be very similar to portfolio. So those who, not similar to portfolio, but a few concepts are going to be common in portfolio and risk management. In case you find if you have already completed portfolio, you'll find this chapter relatively more easy. But even otherwise, you don't need to have any prerequisite knowledge. We're going to be referring to the institute material for the class. So just make sure you've got the institute material handy with you. So the first part is the discussion on what is mean standard deviation. That is what I need to discuss. Second, I need to discuss sample and population. I also need to discuss the different types of means, that is AM, GM and HM. And then we need to discuss probability. Alright, so basically we need to discuss what is mean, what is standard deviation. This is common with portfolio, sample and population, probability portion, GAR-CWMA. This you do not have any idea, and there are just 2 paragraphs on this. We will discuss this. It's very easy. And artificial intelligence, a few pages of little theoretical part is given on that. So let's start off with the numerical portion first. When you're looking at sample and population, why do you need statistics? What is probability? How do you combine statistics and probability together is what we need to understand. When you want to make forecasts about the data, when you want to make predictions for the future, अपने लोग को जब forecast करना है, future में कैसा होगा, आज finance पढ़ के decision making कैसे करोगे? Decision making is going to be based on what is going to happen in the future. अपने लोग ऐसे planning करेंगे future के लिए, तो forecast वगैरह बनाना पड़ेगा. अभी forecast में what happens is, उसको बनाने के लिए you need to study the past data. कि past में these were the average returns I was getting, ऐसा हुआ था, therefore this thing should be in this manner in the future. So when you're looking at the forecasting and all, one, you have to study the past data, therefore statistics comes into consideration. Understand the overview, मैं details में जाऊंगा. You have to study the past data in order to understand what is going to be the outcome in the future. When you want to make forecast, say for example I tell you 20% chance है market ऐसा होगा, अगर market ऐसा हुआ तो return ऐसा होगा. There is a 30% chance that the market is going to be this way. If the market is this way, then the return is going to be this way. And there is a 50% chance that the market is going to be this way. And if the market is like poor, in that case this will be my stock return. If the market is good, if the market is normal, if the market is poor. And if the market is poor, this is going to be my returns. Here you are kind of using probabilities in order to make a forecast. How will you form these probabilities? Probably on the basis of past data. Now, say for example, I want to study the Indian economy. Say for example, I want to study the Indian economy. Now, I do not have, let's say 1 lakh companies worth of data that I can do an analysis and give a judgment on how the Indian economy is behaving or working and how it is going to be there in the future. I cannot study 1 lakh companies data because I don't have that kind of data. And by the time I'll be able to accumulate the data, analyze the data, it will take me a couple of years, and by that time the analysis will become outdated. So what we do is, I want to study the Indian economy which has got, let's say 1 lakh companies. That is the entire population of data. In order to study these 1 lakh companies, I'll say for example take a sample of 500 companies. I will try to make a choice. Achha, let me take few FMCG companies, let me take a few energy companies, a few pharma companies, a few heavy industry companies, a few banking companies. So I'll try to mix, I'll try to get this population. Let me take some small companies, some big companies. So I'll try to take a sample out of this population. What do you understand by the term sample? मेरे को अगर एक ऑर्डर प्लेस करना है 1 लाख पीस का, मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को 2-4 सैंपल भेजो कैसा है, बिकॉज आई थिंक दैट द सैंपल जैसा आएगा, मेरा पूरा जो 1 लाख का माल आएगा वो भी वैसा ही होगा.
I'm thinking that whatever kind of sample I'm gonna get, it's gonna be very similar to the actual the volume of product that I'm going to be ordering for, that I'm going to be receiving. So studying the 500 companies sample, I will try to make predictions about the population. That is why we need to study sample and population. I'll get into the details. In fact, this portion you've already done in CPT level. This is a revision of your CPT or foundation, whatever you have given. Right? So you study, you want to make analysis, you want to make predictions about the population, but you will end up studying the sample. You will study the sample, you look at the sample, and you'll try to make conclusions about the population. Are you seeing how statistics and probability is coming together? You're going to be combining probability and statistics together, and it is not difficult. And anyways, you have to do this for SFM. So might as well do it very nicely, very thoroughly, and understand the basics very well. Because you have to know this part for portfolio chapter of SFM, and you're not in a position to leave any topic as such. Comfortable till here? All right. So first of all, let's understand the mean, median mode, the mean standard deviation part. All right. When you're looking at the book, all right, we've got the sample and the population first over here. So let's discuss the sample and population. In your textbooks, just mark the term population. Second paragraph, last line, too costly. Next line, takes a lot of time. Next line, take a subset called a sample. Make sure you're marking exactly the words that I'm telling you, because it'll be easier for you to revise, because ultimately you'll have to revise the content before the exam. So we are not able to study the population because the population is too huge. It is very time consuming and it is very, very costly. So population ko study karna is not possible. Although I want to make comments about the population, I want to make conclusions about the population, but still yet it is not possible to study the population and make comments because it is too costly and time consuming. So what I do is I will take up a sample. मैं उस sample का average निकालूंगा, उस sample का standard deviation निकालूंगा. I want to study कि Indian economy में, let's say I'm talking about manufacturing sector. तो manufacturing sector का on an average कितना return होता है? Now there are lakhs of factories all across India. I cannot study all those. I don't even have the data of all those. What I do is I'll pick up 50 sample. I'll pick up 50 factories. BHEL लिया, Bharat Electric Limited लिया, Bajaj Electricals लिया. I'll take up those kind of companies. I'm probably looking at analyzing into that area, that segment. तो मैं उस तरह का 50, 70, 50 फैक्ट्रीज लिया सपोज, या 50 कंपनीज लिया, वो 50 कंपनी का एवरेज निकाला. वो 50 कंपनीज का आई वांट टू स्टडी 1 लाख कंपनीज, बट आई टेक अ सैंपल ऑफ 50 कंपनीज फ्रॉम दैट, एंड इस 50 कंपनीज का आई विल कैलकुलेट द एवरेज, एंड इसका जो एवरेज रिटर्न निकल के फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू 8%. आई विल कमेंट, आई विल स्टेट दैट क्योंकि 50 कंपनीज का रिटर्न ऑन एन एवरेज 8% है, तो जो 1 लाख कंपनीज होगा उसका भी रिटर्न 8% के आसपास होना चाहिए. बिकॉज दिस सैंपल इज रिप्रेजेंटिंग दिस पॉपुलेशन. इसको स्टडी करने का टाइम नहीं है, लेकिन कंक्लूजन तो इसी के बारे में देना है. तो व्हाट आई डू इज आई टेक अप अ सैंपल ऑफ 50 कंपनीज एंड आई ट्राई टू मेक अ कॉमेंट ऑन दैट. आई ट्राई टू एनालाइज दैट कि ऑन एन एवरेज इस 50 कंपनीज का जो रिटर्न है दैट इज 8%. सो मेरे हिसाब से जो इस 1 लाख कंपनीज का जो रिटर्न होगा वो भी 8% के आसपास होगा, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग दिस. सो वी आर स्टडिंग सैंपल इन ऑर्डर टू मेक अ कमेंट अबाउट द पॉपुलेशन. और पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए क्या कर रहे हो, उसका मीन निकाले एवरेज कि ऑन एवरेज 8% है. नाउ लेट मी गिव यू 2 एग्जांपल्स. देयर आर 2 कंपनीज और देयर आर 2 इंडस्ट्रीज. वन इज अ हेवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री एंड वन इज अ फार्मा इंडस्ट्री. अभी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में क्या है, कभी रिटर्न 8% है, कभी 12% है, कभी 20% भी दे रहा है, कभी -5% भी है, क्योंकि रिसेशन होता है, कभी मार्केट अच्छा होता है, तो अकॉर्डिंगली इट इज गोइंग ऊपर नीचे. देयर इज अनदर इंडस्ट्री, लेट्स से द फार्मा इंडस्ट्री. अब फार्मा इंडस्ट्री का रिटर्न का एवरेज इज लेट्स से अगेन 8%. लेट्स अज्यूम दैट द एवरेज ऑफ बोथ आर 8%. लेकिन फार्मा का कभी 8 है, कभी 9 है, कभी 7 है, कभी 9.5 है, कभी 7.5 है, कभी 8 है, कभी 8.5 है. Which one do you think as an industry is more risky, the first one or the second one, the electrical one or the pharma? Electrical, because यहाँ movement 8% के आसपास ऐसे हो रहा है, but pharma में ऐसे हो रहा है, because pharma में भी cyclical ज़्यादा नहीं है. Right now Indian market को बोलोगे तो अलग लगेगा, because pharma market डूबा हुआ है right now. But then if you're looking at the pharma industry, तो उसका movement इस तरीके से हो रहा है. But when you're looking at the electrical industry, उसका इस तरीके से movement हो रहा है. People consume more or less.
हैवी इलेक्ट्रिकल्स का बात कर रहा हूँ, मशीनरी का एंड ऑल का, तो वो रिसेशन के हिसाब से ऊपर नीचे हो रहा है. सो दोनों का रिस्क असेस करने के लिए यू नीड समथिंग कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन, विच इफ यू हैव डन पोर्टफोलियो ऑलरेडी नो. सो रिस्क को मेजर करने के लिए वी आर यूजिंग अ टर्म कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन, कि अपना रिटर्न्स का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है. एवरेज रिटर्न तो इस लेवल का है, लेकिन उसके ऊपर नीचे भी रिस्क लेवल गोज. सो व्हाट इज द रिस्क लेवल? स्टैंडर्ड डिविएशन इज योर रिस्क. बोलो, फॉलोइंग दिस, अंडरस्टैंडिंग दिस. सो बेसिकली यू नीड टू कैलकुलेट द रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द सैंपल, बट अल्टीमेटली यू वांट टू मेक क्या बोलते हैं, प्रेडिक्शन फॉर द पॉपुलेशन. अपने कैलकुलेट सैंपल के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपने को प्रेडिक्शन किसका करना है? पॉपुलेशन का करना है. अपने को प्रेडिक्शन किसका करना है? पॉपुलेशन का करना है. राइट नाउ अ फ्यू थिंग्स आर नॉट गिवन इन योर बुक सो मच. एक बार सैंपल में आइए, मार्क करिए. फर्स्ट लाइन सब ग्रुप, फर्स्ट लाइन में मैनेजेबल वर्जन, नेक्स्ट लाइन अनबायस्ड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अनबायस्ड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बेसिकली, आज सपोज मेरे को आउट ऑफ 1 लाख कंपनीज 50 कंपनी सिलेक्ट करना है, मैं अपने मर्जी से सिलेक्ट नहीं करूंगा. अच्छा मेरे को ये कंपनी पसंद है, मेरे को वो कंपनी पसंद है. नो, यू आर सपोज टू रैंडमली सिलेक्ट द कंपनीज आउट ऑफ इट, बिकॉज ओनली इफ इट इज अ रैंडम सिलेक्शन देन इट विल रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन. अगर आपने अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया है तो वो आपका सोच या थॉट प्रोसेस जो है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा. इट विल रिप्रेजेंट योर पर्सनल चॉइस एंड नॉट द पॉपुलेशन. When you're picking out a sample from the population, it needs to be randomly picked. So it needs to be unbiased. Next, वो 3 points दिया हुआ है. It needs to be a representative of the population. Unbiased से वही बता रहा हूँ कि population जैसा होना चाहिए. Sample as a whole should be representing the population. Second, randomly selected. It cannot be based on your personal choice. It has to be random. And third, it needs to be sufficiently large. अब 1 लाख कंपनीज है तो 10 कंपनी चूज करोगे और ये नहीं बोल सकते कि 10 कंपनी का जो रिटर्न होगा वो 1 लाख का होगा. 50, 70, 80 कुछ कंपनीज चूज करना पड़ेगा. राइट, यू हैव टू चूज अ सर्टेन नंबर ऑफ क्या बोलते हैं सैंपल्स, सफिशिएंटली लार्ज. नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैराग्राफ में सेकेंड लाइन टर्म मार्क करिए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. एंड लास्ट लाइन में उस पैराग्राफ का टर्म मार्क करिए, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. What do you understand by simple random sampling and what do you understand by stratified random sampling? Simple random sampling अगर बोलेंगे तो say for example I will put 1 lakh companies का chits में नाम and I will pick let's say 50 chits. So randomly each of the company has got an equal chance of being selected. So there is a random selection being on over here. Random, there is no choice, there is no logic behind selection. Each of them are randomly being picked up. Unbiased हो गया. Representative of population ideally होना चाहिए. 1 लाख कंपनीज है तो मे बी 500 सिलेक्ट करो, क्योंकि सैंपल साइज को भी डिसेंटली लार्ज होना पड़ेगा. दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में व्हाट हैपेंस इज आई एम गोइंग टू डिवाइड द 1 लाख कंपनीज इनटू सेक्शंस. से फॉर एग्जांपल आई एम स्टडीइंग द इंडियन इकोनॉमी, तो मैं कंपनीज को स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में डिवाइड करूंगा. एंड बैंकिंग, फार्मा, एनर्जी, एफएमसीजी, कुछ और दो, एक बैंकिंग, फार्मा, एनर्जी, एफएमसीजी, हेवी इंडस्ट्रीज या ऑटोमोबाइल सपोज. सो आई एम डिवाइडिंग इट इनटू दीज कैटेगरीज. Out of 1 lakh, I want to select 500 companies. That is, out of every 1000, I want to select 5 companies. 500 companies out of 1 lakh companies. So out of every 1000, I'm trying to select 5 companies. That is what it means. अभी क्या हुआ, मैंने देखा कि there is 1000 small companies. There is 10,000 medium cap pharma company. There is 5,000 ये company. There is 10,000 ये company. There is 20,000 ऐसा company. अभी what I'm going to do is, for every 1000 I need to select 5. ये 1000 में से मैं randomly 5 select करूंगा. ये 10,000 में से मैं randomly 50 select करूंगा. ये 20,000 के चिट्स में से मैं randomly 20 into 5 100 select करूंगा. And that is how I will come up with a sample of 500 companies. तो अगर पूरे 1 लाख शेयर्स में, 1 लाख कंपनीज में 10,000 by 1 लाख मतलब 10% कंपनीज आर एफएमसीजी मीडियम कैप, तो मेरे सैंपल में भी 500 में 50 होगा, 10% कंपनीज विल बी एफएमसीजी मीडियम कैप. दिस इज स्ट्रैटिफाइंग माई डेटा. स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. So one, I'm stratifying the data,
एंड वो जो स्ट्राटाज है उसमें से मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूं. इसका फायदा क्या हुआ? द एडवांटेज इज दैट इररेस्पेक्टिव ऑफ, मतलब although it is random, but every single strata, every single block, every single category is going to get represented in my entire population. आज ऐसा पॉसिबल था कि इन चिट्स में से मेरा कुछ कुछ सेक्शंस रिप्रेजेंट ही नहीं होता, बट यहां पर each of the companies, each of the sections are going to be represented in my population. So simple random sampling is a better measure. Stratified random sampling is a better measure. Stratified sampling को डैश दे करके लिखो, better represents the population. Better represents the population. Better represents the population. Better represents the population. If you want to make this, you can. If you just want, you can just make it at the side. अगर लगता है कि याद नहीं रहेगा, याद रहेगा तो it's okay. याद रहेगा तो it's fine. Comfortable? Alright, so the next section, I want to discuss the mean and standard deviation and the different types of mean. First of all, at least for those guys who are in ISC syllabus, ISC board जिन लोग का था, there was a chapter called Measures of Central Tendency, if you remember. CBSE में भी था, ठीक है. अरे मेरे को नहीं पता है, मतलब don't get offended on that. And there was another reading called Measures of Dispersion. Measures of Dispersion में you had range, mean absolute deviation, standard deviance and variance. You don't need this, you don't need this here. ठीक है, मैं एक बार बता दूंगा since स्कूल का रिकॉल हो जाएगा थोड़ा सा. And anyways, this was there in your foundation. You're supposed to be knowing these. Basically the idea is measure of central tendency मतलब कि on an average data कैसा होगा. I want to understand that. That is measure of central tendency कि more or less आज suppose मैं आपको 1000 days का data दे दिया, 1000 days का return ऐसा था. अब 1000 values को देख करके क्या समझ में आएगा? Nothing. You'll not be able to interpret anything if I give you 1000 days का individual returns. You will not be able to do anything about it. So what am I supposed to do? 1000 days का return से तो कुछ कर नहीं पाएंगे. तो 1000 डेटा का रिटर्न का एवरेज निकालोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ठीक है, मतलब ये बीच का वैल्यू है. दिस इज सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डेटा टू बी समवेयर अराउंड दिस. सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का 3 तरीका है, मीन, मीडियन, मोड. आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द 3. ऑल्दो यू नीड ओनली मीन, मीडियन, मोड खाली टर्म्स मेंशन्ड है, बट स्टिल एक बार देख लेंगे. एंड फिर वो डेटा के आसपास द डेटा इज अरेंज्ड दिस वे फार्मा और दिस वे इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल कंपनी. That we need to see in order to understand the risk of the data, which is measured by standard deviation or variance. So I'll discuss this. ये ऐसे भी अच्छे से पता होना चाहिए दोनों terms, because portfolio of SFM में भी you'll be dealing with this. Also in risk management ये तो बहुत जगह आएगा. Basically what happens is mean तो बहुत ही simple है. Mean is simply a summation of all the data divided by n. But when you're writing this formula, n को capital N भी लिख सकते हैं. When you're writing this formula, you're talking about the arithmetic mean. We generally represent the arithmetic mean as x bar. But then, what about your geometric mean and harmonic mean? Harmonic mean नहीं लगेगा, AMGM बता दूंगा. Now, what is the difference between a mean and a median and a mode? Now, there is something called normal distribution, जो आपने foundation में शायद पढ़ा होगा, which you are supposed to study. Because normal distribution, I will need it. Details में नहीं. बट एकदम सिंपल सा एप्लीकेशन मेरे को लगेगा व्हेन आई एम डूइंग डेरिवेटिव्स एंड एक दो जगह और है, मतलब हल्का फुल्का कुछ एप्लीकेशन है. सो एनीवेज अंडरस्टैंड नॉर्मल एंड वैल्यू ट्रस्ट में भी लगेगा, एसएफएम में है लगेगा, मतलब एसएफएम का बता रहा हूं. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नॉर्मली क्या होता है कि डेटा इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड दिस वे. लेट मी टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. हाउ मच टाइम डू यू टेक टू गो फ्रॉम क्लास टू योर हाउस? लेट्स से 25 मिनट्स. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द डेज आपको 25 मिनट्स लगता होगा. बहुत कम डेज होता, काफी दिन आपको 26, 27, 28 मिनट्स भी लगता है. काफी दिन आपको 25 ना 24, 23, 22 मिनट्स भी लगता है. बट देयर विल बी लेस नंबर ऑफ डेज वेयर यू विल टेक लेट्स से 35 मिनट्स और 40 मिनट्स.
देयर विल बी इवन मोर लेस नंबर ऑफ डेज जहां पे आपको 55 मिनट्स 60 मिनट्स लगे, और भी बहुत ही रेयरली ऐसा हुआ होगा कि 70-80 मिनट्स लग रहे हैं. There'll be very less number of days where you've taken 20 minutes, 20 or 15 to 20 minutes. There'll be even lesser number of days कि आपने 10-12 minutes में पहुंच गए हैं. Hardly any day जहाँ पे आप 2 मिनट में 5 मिनट में पहुंचे, थोड़ा सा unrealistic हो रहा है. But the idea is most of the data that you see is arranged around the average. जैसे आप average से deviate करोगे, observations कम होगा. If a company or an industry generally gives you a return of 8%, तो बहुत कम most of the months में उनका return 8 के आसपास ही रहेगा, 7-8-9, 7-8-9 types. बहुत कम मंथ्स में 10-12% रिटर्न देगा, उससे भी कम मंथ्स में 12-14% रिटर्न देगा, और उससे भी कमती मंथ्स में 16-17% का रिटर्न में जाएगा. देयर बी वेरी लेस नंबर ऑफ मंथ्स जहां वो 8 के नीचे 5% का रिटर्न दे रहा है, उससे भी कम मंथ्स में 2-3% का रिटर्न देगा. नेगेटिव रिटर्न विल बी इवन मोर सेल्डम. द ऑब्जेक्टिव इज, द आइडिया इज दैट मोस्ट ऑफ द रिटर्न्स आर अरेंज्ड अराउंड द एवरेज. नॉर्मली डेटा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, नॉर्मली डेटा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. दैट इज वाई वी आर कॉलिंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन एज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. जब अपने सारे डेटा का एवरेज ले लेते, दैट इज अरिथमेटिक मीन. जब अपने लोग बोलते हैं कि 50% डेटा लाइज अबव दिस, 50% डेटा लाइज बिलो दिस, मतलब इफ यू हैव रिसीव 1000 रिटर्न्स, आप वो 1000 रिटर्न्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो. उसके बाद में जो 500th पोजिशन पे होगा, वो स्कूल में अगर याद है कि 500, 501 का एवरेज लेना पड़ता है, वो सब छोड़ो एक बार. 500th पोजीशन में जो डेटा होगा, 500 डेटा उसके नीचे है, 500 डेटा उसके ऊपर है. सो वो जो 500th पोजीशन का डेटा है, दैट बिकम्स मीडियन. एंड मोड इज जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, जो सबसे ज्यादा बार अकर कर रहा है. सो मोड इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा. आई मेक यू राइट एवरीथिंग, यू डोंट वरी. एंड मीडियन इज द मिडिल पोजीशन का डेटा. I'll make you write this. So middle position का डेटा is your median, कि 50% डेटा इस लेवल के ऊपर है, 50% इसके नीचे है. Now you should know as finance students, as chartered accountants, कोई इंटरव्यू में इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिया, एंड लोग पूछते हैं टेस्ट करने के लिए आप लोग कितने फंडामेंटली स्ट्रांग हो. अगर देयर इज अ वेरी हाई रिटर्न, सपोज मोस्ट ऑफ द मंथ्स में द डेटा इज अराउंड 8, 7-8-9, 7-8-9, एक महीना में अगर 25% रिटर्न हुआ, आपका एवरेज काफी हद तक उधर टर्न के जाएगा. अगर सपोज आई एम कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ लेट्स से 7-8-9, 7-8-9, 7-8-9, 9 वैल्यूज एंड एक 40% का. अभी सोचो 9 वैल्यूज का एवरेज इज 8, एक वैल्यू का एवरेज इज 40, 8 में 4 का एक एक्स्ट्रा एडिशन हो जाएगा. इसका एवरेज निकालने का ट्राई करना है. 8 into 9 72 कर दो ना, तुरंत मिल जाएगा. 72 112 डिवाइड बाई 10, 11.2% रिटर्न आएगा एवरेज. इसका एवरेज, इस डेटा का एवरेज इज 11.2%. डोंट यू थिंक आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि एवरेज तो 8 ही है, एक ही साल में कुछ, एक ही महीने में कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न आ गया था. द एवरेज इज गोना बी 8. डू यू थिंक दैट एवरेज रिटर्न इन द फ्यूचर दिस कंपनी विल बी एबल टू गिव यू 11.2% रिटर्न? नहीं दे पाएगा, 8 के आसपास ही देगा. वो 40 के एक्स्ट्रा महीना में आ गया बोल करके 11.2 आया. तो एवरेज को तो फर्क पड़ेगा ना इफ देयर इज एन एक्सट्रीम डेटा, लेकिन मीडियन को फर्क नहीं पड़ेगा. सोचो मीडियन को अरेंज करोगे 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 40, तो कितना भी एक्सट्रीम वैल्यू हो, मीडियन इज नॉट गोना गेट अफेक्टेड सो मच. मीडियन का वैल्यू तो मोर और लेस जो होगा वो उसके आसपास ही रहेगा. मीडियन डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, बट मीन डज. दैट इज वाई मीडियन भी पढ़ना चाहिए हम लोग को. तभी अगर आपने प्लेसमेंट वगैरह, अगर कोई कॉलेज वगैरह का देखा है, तो वहां प्लेसमेंट में इंडियन कॉलेजेस गिव यू मीन स्कोर, मीन पैकेज, कि एवरेज पैकेज स्टूडेंट का क्या है, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो इंटरनेशनल प्लेसमेंट के जो पैकेजेस होते हैं वो डाल करके आपका मीन बहुत बढ़ जाता है. तो कॉलेज दिखा पाता है कि देखो मेरा सैलरी कितना अच्छा है स्टूडेंट लोग का. लेकिन मीडियंस को सैलरीज व्हाट द यूएस कॉलेजेस प्रोवाइड, कि 50% स्टूडेंट्स को इससे ज्यादा सैलरी मिला है, 50% स्टूडेंट्स को इससे कमती सैलरी मिला है. तो मीडियन बताता है. Are you understanding? And mode is the most frequent data. And are you understanding why it is a measure of central tendency? Because most of the data is going to be in this range. Why it is a measure of central tendency? Because most of the data is going to be within this range. एक काम करिए, averages वाला जो heading दिया हुआ है, उसमें first line mark करिए. First moment नहीं लगेगा first moment वैसे. Second line mark करिए, mean, median and mode. मीन को डैश करके लिखिए, एवरेज लिखना है तो लिखो, नहीं तो यू कैन जस्ट राइट द फॉर्मूला सिग्मा एक्स बाय एन. मीडियन को डैश दे करके मिडिल पोजीशन का वैल्यू का ऑब्जर्वेशन का डेटा वट एवर, एंड मोड को डैश दे करके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी.
एक काम करिएगा, just write down one line over there. Mean is affected by extreme values or outliers, comma, median is not. Mean is affected by extreme values or outliers, but median is not. Mean is affected by extreme values or outliers, comma, but median is not. Mean is affected by extreme values or outliers, but median is not. Got it? अच्छा, नेक्स्ट पेज पर आइए. पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन दिया हुआ है, उसके अंदर का जो पूरा टेक्स्ट है उसको कैंसिल कर दीजिए एंड टेक दिस डाउन फर्स्ट एंड आई एम एक्सप्लेनिंग द होल थिंग. Cancel the entire portion in that heading, population mean and sample mean, and take this down. Done? Basically what happens is, अपने लोग को स्टडी किसको करना था? 1 लाख कंपनीज को. अपने स्टडी किसको कर रहे हैं? 50 कंपनीज को. 50 कंपनीज का 50 वैल्यूज को लेकर के जो एवरेज निकाल रहे हैं, दैट इज योर सैंपल एवरेज, विच इज डिनोटेड विद एक्स बार. बट एक्चुअली व्हाट आई वांटेड टू प्रेडिक्ट वाज 1 लाख कंपनीज का एवरेज. 1 लाख कंपनीज का एवरेज करते तो 1 लाख कंपनीज का टोटल डिवाइड बाय 1 लाख करते तो पॉपुलेशन का एवरेज म्यू आता. सैंपल का एवरेज को भी डिनोटेड विद एक्स बार, पॉपुलेशन का एवरेज को भी डिनोटेड विद म्यू. प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड, म्यू नहीं पता होगा. प्रैक्टिकली म्यू नहीं पता होगा, क्योंकि अगर म्यू पता होता तो एक्स बार क्यों कैलकुलेट करते उसको प्रेडिक्ट करने के लिए. सो प्रैक्टिकली यू डू नॉट नो म्यू, सो देयरफॉर वी कैलकुलेट एक्स बार. ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 50 कंपनीज का एवरेज निकालोगे, दैट विल नॉट बी इक्वल टू द एवरेज ऑफ 1 लाख कंपनीज. देयर विल बी एन एरर because you are using a sample data to make a prediction. The difference between the x bar and mu is your sampling error, because you are using sample method to make a prediction about the population. इसलिए अपने लोग का ये error आ रहा है, right? Prediction किसका करना है? Population का, लेकिन वो data नहीं पता होगा तो sample को use करेंगे prediction करने के लिए. बोलिए, following this? So that is your sampling error, right? उसमें यही explain किया है बहुत ही बेकार language में, you cancel that. Next, we come to geometric mean. Now, when you're looking at arithmetic mean, when you're looking at mean, average, say for example, we can calculate average or mean in 3 ways: AM, GM, and HM. Now, it is very easy for me to explain you the means through an example. Harmonic mean is not going to be required. तो मैं बस एकदम roughly समझा करके 2 मिनट में उसको skip कर दूंगा. अरिथमेटिक मीन बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, अपने लोग जो सिग्मा एक्स बाई एन करके जो एवरेज करते हैं वो अरिथमेटिक मीन हुआ. ज्योमेट्रिक मीन हुआ x1 इंटू x2 डॉट 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 xn होल टू द पावर 1 बाई एन करके ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं. नाउ हाउ आर यू गोइंग टू अप्लाई इट फॉर फाइनेंस? अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन.
बेसिकली एक सिंपल सा क्वेश्चन सोचो, आई हैव इन्वेस्टेड माई पोर्टफोलियो में इन स्टॉक ए बी एंड सी, मैंने 200 रुपीज, 500 रुपीज एंड 300 रुपीज डाला, मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है 1000। स्टॉक ए पर मेरे को 20% रिटर्न मिला, 10% रिटर्न मिला एंड 30% रिटर्न मिला। You cannot tell me that your average return is 20 plus 10, 30 plus 30, 60 divided by 3, 20% एवरेज नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि 500 ज्यादा रुपया पे कम रिटर्न कमाए हो और कम रुपया पे ज्यादा रिटर्न कमाए हो। So therefore I cannot say that my average return is just to 20%. Right? In fact, let me just make it a little more 100 पे खाली है 400, ताकि आंसर थोड़ा और एक्सट्रीम आए और अच्छे समझ में आएगा। अल्टीमेटली 400 पे 20% करके आपने 80 कमाया है, 500 के इन्वेस्टमेंट पे 10% करके आपने 50 कमाया है एंड 100 के इन्वेस्टमेंट पे 30% करके आपने 30 कमाया है। तो टोटल अर्निंग्स दैट यू हैव डन इज 80 प्लस 50, 130 एंड 30, 160। सो योर एवरेज रिटर्न इज इक्वल टू 16%। 160 डिवाइड बाय 1000, एवरेज रिटर्न इज 16%, विच इज नॉट क्लोज टू 30 एंड 20। देखो ना 30% का रिटर्न है, 20 का एवरेज होता है इसका अगर नॉर्मल एवरेज करते, बट एक्चुअली 16% रिटर्न है। 16% रिटर्न एवरेज कैसे आया? यू डन वेटेड एवरेज ऑफ द रिटर्न्स, जहां 40%, 50% एंड 10% इज द वेटेजेस ऑफ दी स्टॉक्स एबीसी। 40%, 50% एंड 10% को वेटेज लेकर के यू गिवन दी वेटेड एवरेज रिटर्न एंड द रिटर्न इज 16% ओवर हियर। फॉलोइंग दिस, तो 16% एवरेज रिटर्न जो आया दैट इज अ वेटेड एवरेज रिटर्न। एएम को अरिथमेटिक मीन को सिग्मा एक्स बाय एन लिखो या सिग्मा डब्ल्यू एक्स बाय सिग्मा डब्ल्यू, इट्स द सेम थिंग, इट्स फाइन। अब ज्योमेट्रिक मीन का एप्लीकेशन फिर कैसे होगा? नाउ सपोज लेट मी गिव यू एन एग्जांपल दैट एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड इन अ स्टॉक फॉर लेट्स से 4 years। उसका 4 years का रिटर्न वाज 8%, 12%, 20%, लेट्स से -8%। The returns of in the 4 years was 8, 12, 20 and -8%। अभी अपने लोग को फाइंड आउट करना है कि एवरेज रिटर्न क्या था। Let me tell you that the average return is let's say x। तो आप अगर 4 years तक x कमाते या फिर आप 8, 12, 20 -8 कमाओ, it is gonna be the same thing। That is what an average means, कि on an average ये रिटर्न था। बेसिकली 1 becomes 1 का इन्वेस्टमेंट अगर टाइम 0 पे करोगे तो 4 years में कितना बनेगा? 1.08 इंटू 1.12 इंटू 1.20 इंटू 0.92। -8% रिटर्न मतलब every $1, 1 rupee invested becomes 0.92, correct? So 1 will become कितना in 4 years? 1.08 into 1.12 into 1.20 into 0.92. Give me the answer very quickly, or I'll do it. Wait. $1.335398. 1.3354 let's say. So 1 becomes 1.3354 in 4 years. और अगर मैं x रेट पे इन्वेस्ट करता तो 1 would have become इतना 1 plus x to the power 4 हो जाता अगर एक कांस्टेंट रेट पे इन्वेस्ट करता तो अब x रेट क्या होगा? x रेट will be 1.3354 to the power 1/4 minus 1, that is square root minus 1. Your average return is 7.498% और 7.5%. तो आपका एवरेज रिटर्न आया यहां पर, एवरेज रिटर्न इज 7.5%. ये एवरेज रिटर्न जो हुआ ये ज्योमेट्रिक मीन हुआ. आई डोंट हैव स्पेस ओवर हियर, मैं ऊपर लिख रहा हूं. मेरा एवरेज रिटर्न आया कैसे? 1 plus R1 into 1 plus R2 into 1 plus R3 ... 1 plus R to the power n. That is what 1 becomes in n years. So 1 year में कितना होगा? To the power 1 by n. और -1 करोगे तो इंटरेस्ट पोर्शन. दिस to the power 1/4 minus 1 तो किए हो. Basically geometric mean is the apt mean to use if there is compounding effect happening. One stock में multiple years के लिए इन्वेस्ट करोगे तो geometric mean काम का है. Multiple stocks में 1 year के लिए इन्वेस्ट करोगे तो arithmetic mean काम का है. Following? So arithmetic mean और geometric mean. Harmonic mean actually एकदम ही काम का नहीं, उसको छोड़ ही दो, कोई पॉइंट नहीं है. फॉर्मूला का भी जरूरत नहीं है. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मीन. एंड ऑल्सो वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर, EM greater than equal to GM. So I would suggest बुक में साइड में लिख लो. बुक में ज्योमेट्रिक मीन के नीचे मार्जिन में स्पेस होगा. एग्जाम्पल AM और GM का बना लो, ऊपर नीचे करके जैसे भी AM GM का एग्जाम्पल ले लो. एंड यू हैव टू राइट AM greater than equal to GM.
एंड एक लास्ट लाइन और लिखाऊंगा, वो मल्टीपल स्टॉक इन 1 year, 1 stock in multiple years. I'll make you write that. First you take the 2 examples and you take this AM greater than GM. फिर मैं और एक लाइन दिखा रहा हूं. Take this quickly. Done? Alright. So that is your geometric mean. एक लाइन जो ऐड करने के लिए बोल रहा था वो लिखिए, investing in multiple stocks for 1 year dash use AM. Investing in multiple stocks for 1 year dash use AM. Investing in multiple stocks for 1 year dash use AM. Investing in same stock for multiple years dash use GM. Investing in multiple stocks for the same year dash use GM. Done till here? Next portion, variance, expected value में आओ. Let's go in the serial order only. Now let me give you an example. एक बात बताओ. I'm telling you, you can get a bonus next year on your over and above your salary. There is a 50% chance कि आपका bonus 1 lakh होगा. There is a 50% chance कि आपका bonus 2 lakhs होगा. What is your expected bonus? क्या लगता है आपको कितना bonus मिल जाना चाहिए? What is your expected bonus? If I'm telling you there is a 50% probability कि या तो 1 lakh का bonus आएगा, 50% chance इसका है, या 50% chance है कि 2 lakh का bonus आएगा. So what is your expected bonus? What kind of bonus are you expecting? 1,50,000. बिना कोई फॉर्मूला जाने बोल सकते हो कि 1,50,000. 1 लाख है या 2 लाख है तो ऑन एन एवरेज क्या होगा? 1,50,000 मिलेगा. ऑन एन एवरेज क्यों किया? 50% दिया हुआ है, 50% चांस है, 50% प्रोबेबिलिटी है. नाउ लेट मी चेंज द क्वेश्चन. देयर इज 80% चांस कि आपको 1 लाख, 20% चांस कि 1 लाख मिलेगा, 80% चांस है कि बोनस 2 लाख मिलेगा बिकॉज योर परफॉर्मेंस हैज बीन वेरी गुड. Now tell me, will you be expecting a bonus of 1,50,000 in this case also, or a little more than that, or less than that? 1,50,000 के ऊपर का बोनस एक्सपेक्ट करोगे, कम का बोनस एक्सपेक्ट करोगे कि ज्यादा का बोनस एक्सपेक्ट करोगे? ज्यादा का. There is 80% चांस कि 2 लाख मिलेगा. There is only 20% चांस कि 1 लाख मिलेगा. तो अब तो मेरे को लगता है जब 50% चांस था तब मेरा एक्सपेक्टेड बोनस 1,50,000 था, बट नाउ द एक्सपेक्टेड बोनस शुड इंक्रीज. अब तो 80% चांस है कि 2 लाख मिलने वाला है, तब तो अभी तो बोनस ज्यादा मिलने का प्रोबेबिलिटी बढ़ गया. बेसिकली एक्सपेक्टेड बोनस कैसे निकल रहा है? एक्सपेक्टेड बोनस ऐसे निकल रहा है 20% इंटू 1 लाख
plus 80% into 2 lakh, that is equal to 0.2 plus 1.6 lakhs, that is 1.8 lakhs. That is what you got as your expected bonus. अब ये expected bonus भी ऐसे क्यों किया हम लोगों ने? इसको सिंपल तरीके से समझते हैं. There are 20 situations जहां मेरे को 1 लाख मिलेगा. There are 80 situations जहां मेरे को 2 lakhs मिलेगा. Out of a total of 100 situations, so on an average per situation मेरे को कितना मिलना चाहिए? Simple. Out of 100 cases, out of 100 situations, I am going to get 1 lakh in 20 of those situations and 2 lakhs in 80 of those situations. So total 100 situation में कितना मिलेगा? Divided by 100 situation will give you कि on average per situation आपका expected कितना मिलना चाहिए? That is expected value. Expected value is nothing. Expected value is nothing but the weighted average, weights being equal to the probabilities. आज अपने लोग expected value of EX का फॉर्मूला is summation of PX. ये कहाँ से आया? अपना एवरेज का फॉर्मूला अगर देखोगे नहीं दिया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है. एवरेज का फॉर्मूला अगर देखोगे तो सिग्मा x बाई n करते थे. वेटेड एवरेज करोगे तो सिग्मा WX बाई सिग्मा W करोगे. Now over here probability is going to be acting as the weights. Why is probability going to act as weights? Probability will be acting as weights because 10% चांस है ये होने का, 40% चांस है ये होने का. तो probabilities are acting as weights. जिसका जितना ज्यादा चांस होने का उसको उतना ज्यादा वेटेज मिलना चाहिए. Since probabilities are acting as weights, our expected value or x bar, our average sigma px by sigma p is fine. और जो probability का summation होगा that is equal to 1, sigma p is equal to 1. That is why the value is equal to sigma px, the formula is sigma px. And क्योंकि probabilities use कर रहे हैं, it is not about the past that you are calculating the average for, it is a prediction, it is a forecast, it is an expectation जो आप निकाल रहे हो. इतना % चांस है ये होगा, इतना % चांस है ये होगा. So that is why it becomes the expected value of x. So expected value of x is nothing but sigma px and it is coming from this. ये प्रूफ अगर लिख के साइड में लिखने का मन है तो लिख सकते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू के साइड में. एंड यू हैव टू टेक दिस फॉर्मूला. ये मन है तो लिख लो बट लिखना ही पड़ेगा साइड में. दिस यू हैव टू टेक. And you cancel the content that is written inside. Strike off the content that is written inside it. Done. Taken this down. Next heading में आओ, variance and standard deviation. Now when you're looking at the variance and standard deviation part, basically अपने को find out करना है. मैंने आपको 1000 डेटा दिया, 1000 डेटा का आपने एवरेज करके बता दिया कि more or less डेटा इसके आसपास लाई करता है. I have given you the last 1000 days का return of a stock. 1000 days का रिटर्न ऑफ अ स्टॉक अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, सो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग लुकिंग एट द 1000 रिटर्न. आपको मीन मीडियन कुछ ना कुछ चाहिए कि मोस्ट ऑफ द डेटा इज लाइंग अराउंड दिस रेंज, अराउंड दिस वैल्यू. सो जो वैल्यूज है, थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज है, दे आर लाइंग और अराउंड दिस मीन, दिस एवरेज. करेक्ट. अच्छा, अभी आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि डेटा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है कि डेटा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. वी हैव डन दोस टू एग्जांपल्स, फार्मा और इलेक्ट्रिकल. सो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ इज द डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द एवरेज. उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज, एक तो क्या होता है ना, रेंज था, यू डोंट नीड इट राइट नाउ. पोर्टफोलियो में भी है वैसे, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करते हो तो रेंज है. ये वाला स्टॉक का रिटर्न लाइज बिटवीन -5 रिटर्न % से 20%. तो -5 से 20 इज 25% का गैप. दैट इज अ रेंज, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम. और ये जो स्टॉक था 14 और 6% के बीच में सारा डेटा है.
सो द गैप इज ओनली 8% का, 6 से 14 के बीच में 8% के रेंज में सारा डेटा आ गया. दैट इज रेंज, यू डोंट नीड इट ओवर हियर. नेक्स्ट क्या करना होगा, मेरे को फाइंड आउट करना है कि एवरेज से डिविएशंस कैसा है. कुछ डेटा ज्यादा दूर है, कुछ डेटा कमती दूर है, कुछ डेटा ज्यादा दूर है, बट ऑन एन एवरेज डेटा कितना दूर है. दैट इज व्हाट आई वांट टू नो. व्हाट आई डू इज आई कैलकुलेट x माइनस एक्स बार, या फिर पॉपुलेशन का अगर बात करें तो x माइनस म्यू का समेशन करना होगा. बट x माइनस म्यू का समेशन करोगे तो ये डिस्टेंसेस x माइनस म्यू इज पॉजिटिव, यहां x माइनस म्यू इज नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. मेरे को पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल नहीं करने देना है, बिकॉज आई एम नॉट बॉदर्ड वेदर ऊपर है कि नीचे. आई एम बॉदर्ड टू फाइंड आउट कि डेटा ऑन एन एवरेज कितना दूर है. ऊपर में दूर है कि नीचे में दूर है, नहीं प्रॉब्लम है. एक तो ऑब्वियस सा बात है, यू हैव टेकन अ सेंट्रल डेटा एक्स बार, ऑब्वियसली डेटा विल बी ऊपर एंड नीचे, अबव एंड बिलो दी एक्स बार. बट कितना अबव एंड कितना बिलो एक्स बार, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू चेक. बोलो, फॉलोइंग. सो दैट इज व्हाई x माइनस म्यू आई नीड टू होल स्क्वायर द डेटा इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द साइन. एंड द एवरेज डिविएशंस लेना है तो डिवाइड बाय n करेंगे. दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर योर वेरियंस. This becomes the formula for your variance. But the problem over here is that ये डेटा का स्क्वायर करने से यूनिट गड़बड़ हो गया है. एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, जो मैं फॉरेक्स में भी, जब एसएफएम में फॉरेक्स वी आर डूइंग, देन ऑल्सो आई एम डिस्कसिंग इट. जस्ट टेल मी वन सिंपल थिंग. 10 किलोमीटर्स माइनस 5 किलोमीटर्स कितना होता है? 5 किलोमीटर्स. 10 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर्स कितना होता है? 2 किलोमीटर्स. गलत. 2. 10 kilometers minus 5 kilometers is 5 kilometers distance remaining. But 10 kilometers divided by 5 kilometers is twice the distance. यूनिट भी कैंसिल होता है. यूनिट में भी प्लस माइनस होगा तो कटता नहीं है डेटा, बट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो यूनिट्स भी ऑल्सो वर्क दिस वे. फॉरेक्स में इट बहुत ईजी हो जाता है फॉरेक्स कैलकुलेशंस विद दिस लॉजिक. सो यहां पर वेरिएंस जब कर रहे हो, 10 किलोमीटर माइनस 5 किलोमीटर कर रहे हो और फिर स्क्वायर कर रहे हो तो किलोमीटर स्क्वायर हो गया आंसर. बेसिकली डोंट गेट कंफ्यूज्ड अननेसेसरीली, यूनिट स्क्वायर हो गया ना यहां पर डेटा. 5% स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 25%. 5% स्क्वायर मतलब 0.05 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 0.0025, विच इज इक्वल टू 0.25%. 5% square is equal to 25% square, which is 25 by 100 into 100, which is 0.0025, which is 0.25 square percent. Sorry, ये सब बेसिक्स में गलती नहीं कर सकते हो. Those who've done SFM and portfolio will know this part. कई जगह ये सब डिस्कस किया हुआ है. So basically variance has got unit square. तो इसके लिए we need to standardize the variance, and that is how we get the formula for standard deviation, which is square root of mu कर लेते हैं, कैपिटल कर लो n, x minus mu whole square divided by n. Tell me, comfortable? Everybody good till here? This another formula that I'll give you is not given in the book, but you should do it. ये standard deviation population का है. सैंपल SD के लिए x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का समेशन करेंगे एंड डिवाइड बाय n माइनस 1 करेंगे. You take this extra formula and this you will have to learn. समझा सकता हूं, प्रूव कर सकता हूं, बट अभी नहीं करूंगा बिकॉज उतना अभी रिक्वायरमेंट नहीं है इसका. So standard deviation, obviously when you're calculating the standard deviation of the population, तो population का average लेना होगा. When you're calculating the standard deviation of the sample, तो sample का average लेना होगा. Population में capital N use कर रहे हैं because observation वो 1 लाख कंपनीज है, यहाँ 50 कंपनीज है, बट -1 सैंपल में करना पड़ता है. ये मगअप करना पड़ेगा, आई एम सॉरी, -1 करना पड़ता है बिकॉज राइट नाउ आई वोंट बी एबल टू डू इतना डिटेल में. लॉजिक है बट अभी एक बार छोड़ देंगे. So take these two formulas. Variance, standard deviation. क्यों standard deviation समझ में आया? You're standardizing the variance. That is why standard deviation. Standard deviation अगर 2% निकल के आता है, इसका मतलब क्या कि एवरेज रिटर्न इतना है,
कुछ डेटा 7% ऊपर है, कुछ डेटा 1% ऊपर है, कुछ 10% नीचे, कुछ 1% नीचे, बट ऑन एन एवरेज द डेटा इज 2% ऊपर नीचे. दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड डिविएशन टेल्स यू. वेरिएंस वो नहीं बोल सकेगा, वेरिएंस में वो सेंटेंस नहीं दे सकता, बिकॉज यूनिट इज नॉट स्टैंडर्डाइज, यूनिट स्क्वायर में आ रहा है वेरिएंस. टेक द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन पार्ट डाउन. सी इफ यू आर कंफर्टेबल टिल हियर. और बुक का कुछ मार्क नहीं करना है. वेरिएंस टर्म में सेकेंड मोमेंट अंडरलाइन कर लो फर्स्ट लाइन में. दैट्स ऑल. वेरिएंस के लिए सेकेंड मोमेंट अंडरलाइन कर लो फर्स्ट लाइन में. मोमेंट्स अगर कॉलेज में किया हुआ तो फर्स्ट मोमेंट, सेकेंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट, फोर्थ मोमेंट होता है. यू डोंट नीड इट. बेसिकली क्या है ना, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय n कर रहे हो. जब स्क्वायर है तो सेकेंड मोमेंट बोलते हैं, जब पावर 3 होता है तो थर्ड मोमेंट बोलते हैं, जब पावर 4 होता है तो उसको फोर्थ मोमेंट बोलते हैं. थर्ड मोमेंट एंड फोर्थ मोमेंट इज नीडेड फॉर स्क्यूनेस कर्टोसिस, जो आई स्टिल थिंक तुम लोग का सीपीटी में था, फाउंडेशन में था ये टर्म्स. कॉलेज में था, कॉलेज में तो पक्का ही है. सीपीटी में भी एज फार एज आई रिमेंबर इट वाज देयर, बिकॉज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आई एम प्रीटी श्योर इट वाज देयर इन फाउंडेशन. बहुत टाइम हो गया फाउंडेशन का सिलेबस को हाथ लगाए हुए, बट इट्स देयर. सो फाउंडेशन में नॉनसेंस क्यों, इसीलिए अभी प्रॉब्लम हो रहा है. See if you guys are comfortable till here. Good till here? Next two terms that we need to do is covariance and correlation. Next two terms is our covariance and correlation. कोवेरियंस एंड कोरिलेशन देखो. बेसिकली अभी हम लोग देख रहे थे कि आई वांट टू नो कि डेटा ऑन एन एवरेज कैसा है. डेटा का मूवमेंट एवरेज के ऊपर नीचे वो कितना बिखरा हुआ है, हाउ वेल इट इज डिस्पर्स्ड, लेस डिस्पर्स्ड और मोर डिस्पर्स्ड, वॉलेटिलिटी ऑफ द डेटा. एंड द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू सी इज आई वांट टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. इन पोर्टफोलियो यू वुड हैव ऑलरेडी डन कोवेरियंस एंड कोरिलेशन. कोवेरियंस का बेसिकली फॉर्मूला क्या है, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार divided by n. That is the formula for covariance of x comma y. Now the problem is covariance का एक बार simply example देख लो. Let's say the values are 1 2 3 4 5 and 10 2 4 6 8 10. Very quickly because I'm assuming कि portfolio किया हुआ है, वैसे नहीं भी किया हुआ तो समझ जाओगे, not a problem. इसका average क्या है 3, इसका average क्या है 6. Let me also write down the ulta over here. 1 2 3 4 5 10 8 6 4 2. What is the average of all these values? 1 2 3 4 5 का average is 3, 2 4 6 8 10 का average is 10. या तो डेटा इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है तो ये भी डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है तो ये भी डिक्रीज कर रहा है. ऑब्वियसली मैंने असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज नहीं किया है. x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसा ही है, ये ऐसा ही डेटा है. यू कैन नॉट जस्ट कंबाइन जनवरी 1 का डेटा विद दिसंबर का दूसरा डेटा. सपोज आई एम प्लॉटिंग ONGC का डेटा विद HPCL का डेटा, राइट? सो यू कैन नॉट जस्ट प्लॉट जनवरी का ONGC का रिटर्न विद दिसंबर का HPCL का रिटर्न. बट द आइडिया इज दैट या तो दोनों नीचे है या दोनों ऊपर है, बिकॉज बोथ आर फ्रॉम ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री. सो दे बोथ काइंड ऑफ रिलेटेड टू ईच अदर, को रिलेटेड. बेसिकली कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. या तो दोनों डेटा x बार के नीचे, माइनस इंटू माइनस प्लस, थिंक, या दोनों डेटा x बार के ऊपर, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, प्लस इंटू प्लस इज प्लस. सो इफ द डेटा, if x and y move in the same direction, covariance will be positive. If x and y are moving in opposite direction, x increase कर रहा है, y decrease कर रहा है, x डिक्रीज करेगा तो y इंक्रीज करेगा. तो एक x बार के नीचे है तो दूसरा x बार के ऊपर, या फिर एक x बार के ऊपर है तो दूसरा x बार के नीचे. दैट इज आइदर इट इज माइनस इंटू प्लस और इट इज प्लस इंटू माइनस. आइदर वेज योर कोवेरियंस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, बिकॉज कोवेरियंस इज समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई n.
x minus x bar into y minus y bar divided by n. That is your covariance. अभी प्रॉब्लम एक और है, कोवेरियंस पॉजिटिव है मतलब डेटा मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, दोनों बढ़ेगा दोनों गिरेगा. कोवेरियंस नेगेटिव है तो डेटा मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एक बढ़ेगा एक गिरेगा या एक गिरेगा तो दूसरा बढ़ेगा. दैट इज अंडरस्टैंडेबल स्टिल. बट द पॉइंट इज, से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूं दीज आर द सेल्स डेटा ऑफ टू कंपनीज एक्स एंड वाई, एंड ये जो सेल्स डेटा है दे वर मेंशन्ड इन लैक्स. अभी अगर मैं फिगर इन लैक बोल के करूंगा तो इसका कोवेरियंस कैसा आएगा? 1 - 3 2 - 6 कितना आएगा? 2 × 4 8, 2 and 3 and 4 and 6, 1 × 2 2. इसको छोड़ो, फिर 4 × 1 × 2 और 8 आएगा वापस. सो मेरा कोवेरियंस विल बी द एवरेज ऑफ दिस 10 20 20 डिवाइडेड बाय 5. आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे हिसाब से 4 का कोवेरियंस आना चाहिए. रैंडम छोड़ दो, मतलब आंसर गलत हो सकता है, डोंट काउंट मी ऑन दैट. सपोज कोवेरियंस इस टाइप का कोई फिगर आएगा. द मोमेंट आई एड लैक्स ओवर हियर, बेसिकली 10 to the power 5 मतलब 2 लाख इंटू 1 लाख, 1 लाख इंटू 2 लाख, इस तरह का रेंज हो गया ना. लाख इंटू लाख, आपके जो आंसर्स आएंगे उसमें 10 to the power 5 इंटू 10 to the power 5, 10 जीरो आएगा आंसर्स में. मतलब कोवेरियंस ऑफ द सेम टू फिगर्स कैन बी आइदर 4 और 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 10 to the power 10, इट कैन बी दैट ह्यूज. मतलब 4 देख करके या 4 इंटू 10 to the power 10 देख करके पता नहीं चलेगा कि रिलेशन कैसा है. द प्रॉब्लम इज कोवेरियंस इज 10 किलोमीटर माइनस 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर माइनस 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर यूनिट स्क्वायर. दैट इज अ प्रॉब्लम. सो आई नीड टू स्टैंडर्डाइज द कोवेरियंस. हाउ डू आई स्टैंडर्डाइज द कोवेरियंस पार्ट? आई स्टैंडर्डाइज कोवेरियंस बाय कैलकुलेटिंग समथिंग कॉल्ड कोरिलेशन x, y, ऐसे भी लिखते हैं या r(x, y) भी लिखते हैं. दैट इज इक्वल टू, मतलब और दिस, मतलब या तो ये बोलो या ये बोलो, डिवाइड नहीं है. दैट इज कोवेरियंस ऑफ x, y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y. सिग्मा इज व्हाट वी यूज टू डिनोट x एंड y. समेशन वाला भी सिग्मा होता है, ये भी सिग्मा होता है. So correlation x, y is written as covariance x, y divided by sigma x, sigma y. You are basically standardizing covariance. Covariance का जो issues था उसको solve कर रहे हैं. Now book का formula अगर देखोगे तो covariance का formula में ना population का value ये है -1 if sample. Sample जब भी होगा तो denominator में -1 use करते हैं. This part you'll have to just learn. बाकी formula you don't have to learn it from the book. देखो आइडिया सिंपल, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार करना है. पॉपुलेशन का x बार y बार को म्यू x म्यू y लिखते हैं, सैंपल का x बार y बार को x बार y बार लिखते हैं, और सैंपल जब भी होगा तब डिनोमिनेटर में -1 होगा. तो आई वुड नॉट वांट यू टू लर्न टू फॉर्मूलाज, यू जस्ट लर्न योर क्लास 11 12 वाला ही फॉर्मूला, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बाय n. अब पॉपुलेशन होता है तो उसको म्यू लिखते हैं x बार को, और एवरेज होता है तो उसको x बार y बार ही लिखते हैं सैंपल में. बट सैंपल में डिनोमिनेटर में हमेशा -1 देना पड़ेगा. Is that okay? So correlation का job is standardizing the covariance part. Correlation का job is standardizing the covariance part. It is a unit free measure. कट जाएगा, देख लो ना, unit square है covariance में, इसका unit इसका एक unit, दोनों कट जाएगा पूरा. So correlation does not have any unit. मैं बुक में मार्क भी करा दूंगा. If you want, you take the covariance का formula in this manner if you like. एंड कोरिलेशन का फॉर्मूला तो लिख लीजिए, दिया है क्या ये लोग? हाँ दिया है, वो बेकार तरीके से वैसे डिवाइड करके दिया. आई लाइक, मतलब अपना फॉर्मूलाज अपने हैंडराइटिंग में लिखा करो, इट्स इजियर टू लर्न. Now, what do you understand by correlation? Say for example, मैंने कुछ डेटा प्लॉट किया है x and y का. I am trying to understand the relationship, let's say, between coal prices and Coal India's share का प्राइस, और लेट्स से इन्फोसिस का शेयर प्राइस विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज का प्राइसेस, रुपी डॉलर का प्राइसेस, बिकॉज इन्फोसिस एन एक्सपोर्टिंग कंपनी, सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, तो ऑब्वियसली रुपी डॉलर का रेट को से इम्पैक्ट होगा. सपोज मैंने प्लॉट किया डेटा
any data and it turned out to be this way. अगर ये x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 इस तरीके से डेटा है, I try to join the points and it kind of falls on the same straight line. Practically ऐसा कभी होने वाला नहीं है, you understand? Real world का डेटा थोड़ी ऐसा होगा. Let's say the equation is equal to 3.2x plus 5. Correlation equals to 1 does not mean that if x changes by 1 unit, y changes by 1 unit. Because in fact, if x changes by 1 unit x अगर ज़्यादा होगा तो y 3.2 बढ़ेगा. x अगर 1 यूनिट गिरेगा तो y actually 3.2 units गिरेगा. So if x changes by 1 unit, y changes by 3.2 units. If x changes by 1 unit, y changes by 3.2 units and not by 1 unit only. Is everybody following this? So correlation 1 का मतलब क्या हुआ? Correlation 1 का meaning is that for every unit x that changes, every unit of x that for every 1 unit change in x, y changes by exactly 3.2 units. Correlation equals to 0.8. Suppose मेरा डेटा इस तरीके से प्लॉट हुआ. अब ये डॉट्स का तो इक्वेशन बना नहीं सकते. The best possible equation that goes between these points, उसका correlation निकालें and that turned out to be 0.8. That means, again, it does not mean कि x एक यूनिट चेंज हुआ तो y एक यूनिट 0.8 यूनिट चेंज होगा. वो तो स्लोप हो गया ना इक्वेशन का. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो की हो सीपीटी में, फाउंडेशन में, वो तो स्लोप हो गया. The idea is, जब x एक यूनिट बढ़ा तो कभी y 3.1 यूनिट बढ़ा, कभी 3.3 यूनिट बढ़ा, कभी 3.2 भी बढ़ा, कभी 3.6 बढ़ा, कभी 2.8 बढ़ा. It increased but very close to 3.2, not exactly 3.2. R equals to 1 मतलब x changes by 1 unit, y changes by exactly the same number of units every time. Correlation equals to 0.8 मतलब relationship is very strong. But exact 3.2 नहीं बढ़ता है, 3.2 के आसपास कुछ increase होता है. This is a perfect relationship. This is a strong relationship. And suppose मेरा डेटा इस तरीके से प्लॉट हो रहा है. Your correlation is equal to 0.4 types. Suppose the relationship is weak because कभी 4 increase करता है, कभी 4.5 increase करता है, कभी 2 increase करता है, कभी 2.5 increase करता है. Increase करता है. When x increases, y increases. But बहुत ही वेरिड है. कभी 4, कभी 2, 2.5, 3.5, पता ही नहीं, मतलब 3.2 के आसपास है, बट आई डोंट नो व्हाट. So basically, it is a perfect positive relationship, strong positive relationship, weak positive relationship. अगर x और y कैसे भी मूव करे कुछ पता ही नहीं चलता है, that is a correlation is 0. अगर स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से मूव करेगा तो that is correlation equals to -1. इसका इक्वेशन will be y is equal to -3. So negative correlation tells you that if x increases by 1 unit, y decreases. Y decreases by exactly 3.2 units. Y decreases by more or less very close to 3.2 units. और y decreases by कभी 3.4, कभी 4, कभी 2.5, कभी कुछ वैसा टाइप का. This is perfect, but perfect negative. This is perfect, this is strong, but strong negative. This is but weak negative. The idea is the sign of correlation will tell you whether the movement is positive or negative. X increase करेगा तो Y increase करेगा मतलब positive. X increase करेगा तो Y decrease करेगा मतलब negative. Close to 1 will tell you strong. Close to 0 will tell you weak. -1 strong, almost perfect negative relationship, +1 strong positive relationship. As you move towards 1 on either side, weak is 0. Sign is telling you the direction of the movement, and the value, the magnitude is telling you the strength of the relationship, जो कि covariance नहीं बता रहा था. Covariance का 20 cannot tell you which of the graph is gonna be. वो नहीं बता रहा था. Now if you want to mark in the book, covariance का formula टिक कर सकते हो, correlation का formula टिक कर सकते हो.
प्रॉपर्टीज में बुलेट्स मार्क करो. स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप. एक और चीज समझिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप. सपोज मेरा डेटा का ये ऐसा डेटा है मेरा, देयर इज अ रिलेशनशिप ओवर हियर, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सर्कल का इक्वेशन में फॉर्म कर जाएगा ये, बट कोरिलेशन निकालोगे तो 0 निकल के आएगा. कोरिलेशन 0 डज नॉट मीन देयर इज नो रिलेशनशिप, इट मीन्स देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप. ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 नहीं निकाल पाओगे, इसका मतलब वो हुआ देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप. सो इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप. नो यूनिट्स, -1 टू +1 में रेंज करेगा. तीनों बुलेट्स मार्क कर लीजिए. और बाकी 3 पॉइंट्स नहीं याद करना होगा, काट दीजिए बाकी का. यू जस्ट मेक, इफ यू मेक दीज ग्राफ्स आई थिंक इट्स बेटर. Correlation equals to 1 does not mean that for 1 unit change in x, y changes by 1 unit. Correlation 1 का मतलब है for every 1 unit change in x, y changes by exactly the same number of units. तो strength of the relationship ये बताएगा कि x के एक यूनिट से y पे कितना ज्यादा इम्पैक्ट होता है. अगर रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब y इज टोटली डिपेंडेंट ऑन x, y का मेजर मूवमेंट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ x. रिलेशनशिप स्ट्रांग. को वेरियंस, दो चीज का वेरियंस, मूवमेंट आपस में विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर. को रिलेशन, दोनों का आपस का बीच का रिलेशन. टेल मी, गेटिंग दिस? ये वाले ग्राफ्स कॉपी करने, कॉपी कर लो, इट बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. और ये ऐसे भी ये पोर्टफोलियो में लगेगा SFM, कोवेरियंस कोरिलेशन. डन. ठीक है. ठीक है.